Hello everyone, welcome to my channel Learn and Excel with Seema. After a long gap, I'm here to talk on a topic growth and development. But before that, do like my channel, subscribe to the channel, and also share it among your friends. So let's get started. What is human development? ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या? तो ये उन सारे चेंजेस का है जो कि किसी भी व्यक्ति में बर्थ से लेके डेथ तक होते रहते हैं. सो इट रेफर्स टू द चेंजेस विच हैपन्स इन द पीपल फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ. कंसेप्शन मीन्स बर्थ, सो फ्रॉम बर्थ टिल डेथ. There are two terms, growth and development. People use these two terms interchangeably. वो growth और development को एक ही समझते हैं, बट ऐसा है नहीं. There is a difference between growth and development. Growth starts with the process of a single cell. It is created by joining together of one cell with the another cell. So growth का मतलब हुआ body changes. बच्चे के साइज में, जैसे उसका हाइट, उसका वेट, उसका बॉडी मास, ये सब बढ़ना ग्रोथ कहलाता है. सो वी कैन से दैट ग्रोथ कैन बी measured or the changes during growth are measurable. जबकि जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. Development is a lifelong process. It is a change in the physical, behavioral, cognitive, and emotional. So, development is a physical, behavioral, cognitive, emotional, and also the intellectual change. A lot of changes of these types, like physical change, emotional change, intellectual change, and the cognitive change, takes place in the various stages of a child. And the various stages are the childhood, infancy, the childhood, the adolescence, and then the adulthood. So majorly we'll be discussing about the 4 stages of an individual. 4 स्टेज इंडिविजुअल के, जो कि इन्फेंट स्टेज हुआ, फिर चाइल्डहुड स्टेज हुआ, फिर अडोलेसेंट और फिर अडल्टहुड. तो हम कह रहे थे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग टर्म्स हैं. इनको हम एक साथ जो है यूज़ करते हैं, बट दोनों का मतलब अलग है. ग्रोथ जो है वो फिज़िकल चेंज के बारे में बताता है, जबकि डेवलपमेंट जो है ओवरऑल चेंजेस के बारे में बतलाता है. दैट मीन्स इट इज़ ओवरऑल एंड द प्रोग्रेसिव चेंज इन द ह्यूमन organism, or rather you can say organism. So growth and development. Growth is physical. Development is physical. Intellectual, social, then your cognitive, or cognitive and intellectual are the same, and then is your emotional, right? So growth is only physical, but development is physical, intellectual or cognitive, it is social, and then it is emotional. Growth is cellular in nature. As I said earlier, it starts with the division of a cell
So growth is cellular in nature, but development is organizational in nature. ठीक है. ग्रोथ जो है शेप में चेंज होगा, फॉर्म में चेंज होगा और बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होगा. और साइज में चेंज होगा. बट जो आपका डेवलपमेंट है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोथ. ग्रोथ जो है मैच्योरेशन पे स्टॉप हो जाता है. वंस द इंडिविजुअल इज मैच्योर्ड और ही हैज़ अटेन मैच्योरिटी, द ग्रोथ विल स्टॉप. But development is lifelong, as I said, and it continues till death. ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट जो है इट इंक्लूड्स ग्रोथ, राइट. सो growth is a part of development and development includes growth. So we can say that development is a never ending process. It goes on and on. But the rate of development can be different from individual to individual because no individual is same. There are individual differences, so the development will be different from one individual to the other individual. Development always has a direction. Development का direction होता है. That means development is sequential, right? So development goes in an order. जैसे बच्चा पहले क्रॉल करता है, फिर स्टैंड करता है और फिर वॉक करता है. और क्रॉलिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग हर एक स्टेज पर, हर टास्क में जब तक उसकी मास्टरी नहीं आ जाती तब तक वो अगले स्टेज पर नहीं जाता है. तो स्टेज फ्रॉम सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स. डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्टेजेस. डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस में होता है. So there are 4 stages of development. 4 stages of development. One is your infancy, जिसको हम कहते हैं इन्फेंसी मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तब वो that child is infant, so infancy. Then the second stage is your childhood stage. Third is your adolescent. And fourth is your adulthood. So there are 4 stages of development: infancy, childhood, adolescent and adulthood. Infancy 0 से 2 साल तक का, childhood 2 से 11 साल तक का. और चाइल्डहुड को भी हम 2 स्टेजेस में कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड. और फिर अडोलेसेंट जो
11 से 18 साल और 18 साल से ऊपर टिल डेथ इज द अडल्टहुड. Now first we will talk about the physical development. एक इंडिविजुअल सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट को एनकाउंटर करता है. सो व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, द चाइल्ड फर्स्ट अंडरगोज द फिजिकल डेवलपमेंट स्टेज. The physical development in infancy, that means from 0 to 2 years में जो चाइल्ड का फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है. बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं उसके बॉडी में, उसके ब्रेन में. एंड दीज चेंजेस सपोर्ट्स द मोटर, the fine motor skills, the gross motor skills, the perceptual and the intellectual abilities. Then comes the early childhood, that is from 2 to 6 years. इस स्टेज में बच्चे का फिजिकल ग्रोथ होता है, उसके मोटर स्किल्स और रिफाइंड हो जाते हैं, बच्चा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, यहाँ तक कि उसका थॉट और उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट इज़ द मिडिल चाइल्डहुड, दैट इज़ फ्रॉम 6 to 11 years. इस स्टेज में बच्चा जो है अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट से उसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ही इज़ अ वाइडर वर्ड टू एक्सपीरियंस. एंड उसकी एबिलिटीज़ जैसे एथलेटिक एबिलिटीज़, उसका गेम्स के पार्टिसिपेशन, इवन उसका लॉजिकल थॉट, वो सब इंक्रीज़ हो जाता है. बेसिक लिटरेसी स्किल्स पर उसकी मास्टरी हो जाती है. In the adolescent stage, that is from 11 to 18 years, the child develops rapidly after infancy and then enters into the adolescent stage. This is the period of transition to adulthood. At this stage, the child is a young people. He has established autonomy and has his own personal values and goals. अडल्टहुड में फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो आकर ख़त्म हो जाता है. डेवलपमेंट हाइट, वेट, नर्वस सिस्टम के रिस्पेक्ट में हैज़ कम टू एन एंड, हैज़ बीन इट्स कंप्लीटेड. बट जो थॉट प्रोसेस है वो और ज़्यादा रिफाइंड हो जाता है और जो ऑटोनॉमी है वो भी इंक्रीज हो जाती है और ये स्टेज कंटिन्यू करता है टिल डेथ. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड डेवलपमेंट, दैट इज द सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट जो है वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में है. एन इंडिविजुअल is a human being. He is a social being and he is not passive or static. वो ग्रुप का, सोसाइटी का, कम्युनिटी का एक एक्टिव मेंबर है और being a part of the society, the social development takes place. Social development involves learning the values, the knowledge, the skills that enable the child to relate to the others, the people with whom he or she interact effectively and to contribute positive ways in the family, school, community. फैमिली का, फ्रेंड का, सोसाइटी का, कल्चर का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहें तो बच्चे की लर्निंग पे फ़र्क पड़ता है. अब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट इन द वेरियस स्टेजेस. सोशल डेवलपमेंट इन्फेंसी में स्टार्ट होता है जब बच्चा अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करता है और एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर फॉर्मुलेट होता है. व्हेन द चाइल्ड कम्स इनटू कांटेक्ट विद द अडल्ट पर्सन. और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है इसका यही पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है उसके रूल्स में, उसके सोशल बिहेवियर में निकल कर आता है.
सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है और उसके बहुत सोशल बिहेवियर जो है वो स्कूल के लोगों में स्कूल में मौजूद लोगों से मिलने से, उनके इंटरेक्शन के साथ, या हम कहें स्कूल एटमॉस्फेयर से इन्फ्लुएंस्ड होता है. During this period, the child is away from the home considerably for a longer period of time. So, the school teachers, the peers, the environment of the school affects the social development of the child. इस स्टेज में बच्चा एडजस्ट करता है सोशल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, बिकॉज द चाइल्ड इज नाउ अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. इन द एडोलेसेंस स्टेज, the social development takes place very radically. The child undergoes radical changes both physically and mentally. तो फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके के चेंजेस एडोलेसेंस स्टेज में सोशल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में होते हैं. बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसकी अपनी नीड्स जनरेट होती हैं, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, ये सब बिल्डअप होते हैं. तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट जो है वो और ज़्यादा वाइडर हो जाता है. इस स्टेज में बच्चा बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिज और हर जेंडर. इस पीरियड में सोशल कॉन्शियसनेस और भी इंक्रीज हो जाती है. एंड एट दिस स्टेज द चाइल्ड, और यू कैन से द इंडिविजुअल, दे नीड गाइडेंस एंड डायरेक्शन. Now, social development in the adulthood. So, social development adolescence stage से आया वो adulthood तक कंटिन्यू करता है. यहाँ पर social development जो है बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल की ऑक्यूपेशन, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन, उनका मैरिड लाइफ, इन सारे फैक्टर्स से गवर्न होता है. इवन द इमोशंस, उसका फ्रेंड सर्कल, उसका लेवल क्या है कोऑपरेशन का, तो इन सब चीज़ों से, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, उसका मॉरलिटी या कह लें सोशल या मॉरल ऑर्डर क्या है, ये मैनरिज्म क्या है, इन सब से गवर्न होता है. एंड एट दिस स्टेज, एट द एडल्टहुड स्टेज, द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ very strongly from the social perspective. Now we'll talk about the emotional development. First, we'll try to understand what is an emotion. Emotions क्या है? Emotions हमारे moods हैं. So, moods हम अपनी फीलिंग्स, ड्राइव्स, कुछ भी कह लें. इमोशनल डेवलपमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. द इमोशन इज़ डायनेमिक and it means an internal adjustment which a child implements while interacting with the life processes or interacting with the life experiences. Now we'll talk about emotional development in infancy. जब बच्चा छोटा है, 0 से 2 साल का बच्चा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें इमोशनल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता. येस, ऑफ कोर्स इट इज़ प्रेजेंट, वो रहता है. और ये देखा जा सकता है उसके रोने से, उसके विगरस मूवमेंट से, जो कि चाइल्ड अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू शो करता है. Infants' emotion increases with experience and they are changeable and unstable. और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और हायर स्टेज में जाता है, उसका इमोशनल पैटर्न बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होता जाता है. In the process of emotional development, the child gradually evolves definite patterns of direction.
So from the infant stage to the childhood to the adolescent and to the adulthood stage, at every stage emotional development of the child takes place. In the childhood stage बच्चा जो है फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, अपने पियर्स के थ्रू, अपने स्कूल और कम्युनिटी के थ्रू इंटरैक्ट करता है, तो यही सारे फैक्टर्स उसके इमोशनल डेवलपमेंट को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं. A specific pattern of behavior is formed regarding adults and the peers with the child, in the child with whom the child comes into contact. तो चाहे स्कूल का एटमॉस्फेयर हो गया, चाहे होम इन्वायरमेंट हो गया, दोनों ही बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. एट द एडोलेसेंट स्टेज, ये वो पीरियड है लाइफ का जब इंडिविजुअल जो है डेवलपमेंट हर रिस्पेक्ट में शो कर चुका है. फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड द इमोशनल डेवलपमेंट. इस स्टेज में इमोशंस का एक्सप्रेशन जो है वो मॉडिफाई होता रहता है. The high intensity of the gender instinct is the reason that adolescents they give out very explicit innovations. इस स्टेज में नॉलेज और एक्सपीरियंसेस दोनों ही ब्रॉडन होते हैं, दोनों का दायरा बढ़ता है. इस वजह से इमोशंस भी जो है वो हाईली डेवलप्ड होते जाते हैं और धीरे धीरे उनमें स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है. अडल्टहुड स्टेज में इमोशनल डेवलपमेंट अपनी मैच्योरिटी पे होता है. बहुत तरीके के इमोशंस होते हैं जैसे कि फियर, एंगर, हेट्रेड, प्लेजर, इवन डिस्क्रिमिनेशन इज़ ऑल्सो एन इमोशन. ये सारे इमोशंस एक व्यक्ति में, एक अडल्ट पर्सन में बड़े ही डिस्टिंक्टली देखे जा सकते हैं और इन इमोशंस के बेसिस पर दे डिस्प्ले पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड एक्सप्रेशंस. सोसाइटी के रूल्स, रेगुलेशंस, व्यक्ति का खुद का वैल्यूज़, उसके डिज़ायर, उसके आइडियल्स भी उसके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ we'll talk about the next development, which is the intellectual development, or you can say the cognitive development. What do you mean by intellectual or the cognitive development? इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट या कहें मेंटल एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट. और किसी भी इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट, उसके थिंकिंग का डेवलपमेंट, मेंटल प्रोसेस का डेवलपमेंट जो है वो सब आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आता है. सो डेवलपमेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल कैपेबिलिटीज़, it all comes under the mental development. There are certain areas of mental development. Intellectual development or mental development, whatever you say. So there are basically 4 areas. First one is the sensation. जिसको हम सेंसरी इम्पल्स भी कहते हैं. सेकेंड इज परसेप्शन, मतलब सेंसेशंस का इंटरप्रिटेशन आप कैसे कर रहे हैं. थर्ड इज मेमोरी एंड द फोर्थ वन इज रीजनिंग.
तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सेंसेशन से स्टार्ट होता है. यू हैव एक्सपीरियंस्ड अ सेंसरी इम्पल्स. उस सेंसरी इम्पल्स को एक्सपीरियंस करने के बाद आप एक परसेप्शन बनाते हैं. ठीक है, एक मैप पैटर्न है, या आप कह लीजिए एक मैप आपके दिमाग में बनता है. तो मतलब आपने सेंसेशन के बेसिस पर क्या चीज़ इंटरप्रेट करी है, एंड दैट इंटरप्रिटेशन इज stored in your memory. So with the help of the memory you are trying to recall your experiences, and then the highest form of the intellectual development is the reasoning, wherein you apply your thought process, your logical thinking to know why it is and how it is. Now we will talk about the various stages regarding the intellectual development. If we talk about the infant stage, at the infant stage the intellectual development do take place. जो infant है वो अपने needs जैसे feeding की needs या sleeping की needs उसको satisfy करना उसे आता है. And at the infant stage the infant shows few signs of rational behavior. As soon as the child's physical needs, such as feeding or sleeping, is fulfilled, the child shows the comfort. So, this is what the intellectual development at the infant stage. Childhood stage पे भी intellectual development continue होता है from the infant stage, wherein the child is aware of thirst, the hunger, the sleep and other bodily needs. And इस स्टेज पे चाइल्ड ज़्यादा डिमांडिंग और सिलेक्टिव हो जाता है. नेक्स्ट इज द स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंट एंड द adulthood. But at the adolescent and the adulthood stage, the child has reached the highest level of the intellectual development, which is being forwarded from the previous stage of middle childhood stage, जहाँ पे बच्चे की क्यूरियोसिटी, उसकी क्रिएटिव टेंडेंसीज जो हैं वो उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प करते. सॉल्विंग प्रॉब्लम is also a stage wherein the child reaches to the intellectual development at the middle childhood stage. Puzzles को solve करना, various kinds of problems को solve करना, ये जो है उसके मिडिल चाइल्डहुड स्टेज का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शो करता है. और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट होता है जब मिडिल चाइल्डहुड से ट्रांजिशन होता है एडोलेसेंट और अडल्टहुड में. इस स्टेज पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और बच्चे का स्किल जो है वो, or rather we can say the individual skill becomes more refined and thinking and the thought process has developed to the highest level. With this we come to an end of this session. In continuation to this video, I'll come up with a video within few days on Kohlberg's stages of development. So in my next video I'll talk on the Kohlberg's stages of development. Till then, bye.
And again, do like, share and subscribe to the channel.